Welcome to the Rapid Fire Round. We are with Dr. Parampreet Nagpal. You might know him as a surgeon, but let's know what's behind the mask. Hi, sir. Hello. So, my first question is, what makes you different from other doctors? Wow, that's an interesting start. As a surgeon, सब अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं. But what makes me different is, I think, my mindset. I think I want to go an extra step ahead to make my patient more comfortable, to see that the families who are accompanying them, they are also more comfortable. So it is not just about the treatment, it is also what is around the treatment. So I just try to take an extra step so that I keep everyone around the patient as well as the family very comfortable in the hospital when they are here. Okay. So, what's the first thing you do when you take off your gloves? As you know, I always give my personal number to all my patients and the relatives. So whenever I take off my gloves, that's the time when I want to check who has called me during the time I was doing surgery. A lot of patients send me reports, so I check my WhatsApp very often so that I don't miss on any patients who have approached me through WhatsApp. So that is the first thing. I do check my missed calls or the received calls and also go through my WhatsApp messages. Okay. Describe yourself in one word, in and outside of OT. Well, inside the OT, I'm a robot. So I work like a machine. I go for perfection. And when I'm outside the OT, I'll say I'm a human, an empathetic human. I have that very comforting nature. So it is a mix of both. I am a very perfection-oriented, robotic kind of person when I'm in the OT. And outside, it is a very soft human being. So a human care and a soft touch with the perfection of a robot. Okay, so why did you choose Bathinda over the other tier 1, tier 2 cities? So Bathinda, as people now know, is my birth city. I've been born and brought up here. जो सब कुछ हमें मिला है, सब बठिंडा ने ही दिया. So as I've trained all around the world, but जो इस इलाके ने हमें दिया है, जो इज्जत दी है, जो एक पोजीशन दी है, तो I think it is our responsibility to give it back to our area. Bring all the advances to this area. And Bathinda is also very strategically located. It is connected to Haryana, Rajasthan as well as Punjab. And this area has always been a little backward initially. Now in the last 5 years it has progressed a lot. तो यहाँ के लोगों को ज़रूरत है advanced treatments की, क्योंकि पहले यहाँ पे लोग कम आते थे. But अभी because it is a center जहाँ पे बहुत अच्छा medical hub बन गया है, तो अब यहाँ पे रहने से हमें एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे फीड कर सकते हैं. 3 डिफरेंट स्टेट्स के पेशेंट को हम यहाँ पे केटर करते हैं. That's nice. So, have you ever Googled yourself? If yes, what came up? Yeah, since we've gone into robotic surgery, I've kind of become more active on social media. So whenever I Google myself, images of RoboDoc do come up. So there's a transition of sometimes it shows me, sometimes it shows a robotic system. So I've kind of become a dual personality, that I'm a human or a robot. So all my social media things, all my patient testimonials, all people who've got operated and saying good things about robotic surgery and me, those things do crop up. That's nice. So I'll give you 2 options. What's tough, a complex surgery or getting a full night's sleep? Actually, over the time, both have now become easy. See, complex surgeries, as you grow, now it's like 15 years since I've been doing surgery. So once you are going into a surgery, you're always tense because you don't know what is going to come up. Surprise होता है, कभी-कभी अंदर कुछ निकलता है, कुछ क्या निकलता है. But as you go with experience, तो surgery तो धीरे-धीरे करते-करते पेशेंस आ गए. So if it's a complex surgery, धीरे-धीरे चलते जाएंगे, step by step चलते जाएंगे, तो end में final result अच्छा मिल ही जाता है. हाँ, sleep कभी-कभी it is not in your hand. Sometimes you've done some complex case, तो रात को नींद नहीं आता है. But I think टाइम के साथ आप अपने आप को एक कंपार्टमेंटलाइज करना सीख जाते हो. तो रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सबको हम बताते हैं कि अगर रात को 7 से 8 घंटे आप अच्छे से सो पा रहे हैं, तभी आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं. तो दोनों चीजें टाइम के साथ हमने अच्छे से करनी सीख ली. Okay. So how has your wife helped you in your journey? देखो, फैमिली एंड योर पार्टनर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितना काम का लोड हम करते हैं डेली के 10 से 12 सर्जरीज करना, तो अगर बाकी सारा काम भी हमें खुद देखना पड़े, स्टाफ का, बैकअप के जो इम्प्लांट्स की सारी रेडीनेस का, जो पोस्ट ऑपरेशन की केयर का, प्लस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर सब कुछ वो करना पड़े तो आई थिंक एक पर्सन नहीं कर पाता. तो दैट इज वेयर माई पार्टनर कम्स इन. वो सारे जो बाकी के पेशेंट्स के राउंड्स हैं, उनका जो बाकी का पोस्ट ऑप का ख्याल रखना है,
जो सारे स्टाफ की देखभाल करनी है कि किसकी ड्यूटी कब करनी है, एंड जो और सारे जो छोटे छोटे काम है जो सडनली क्रॉप अप कर जाते हैं, वो सारी चीज़ों का ख्याल वो रखते हैं। तो मेरा फोकस सिर्फ मेरे पेशेंट्स, उनकी ओपीडी केयर के ऊपर, सर्जरीज के ऊपर रहता है, इसीलिए मैं अपना बेस्ट दे पाता हूँ। तो आई थिंक बिना उनकी सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो वर यू स्कैर्ड ऑफ योर फर्स्ट सर्जरी? बिल्कुल, जब ट्रेनिंग में थे पीजी के टाइम पे, उस टाइम पे एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट जब सर्जरी मिली थी, तो ऑब्वियसली यू आर क्यूरियस, बट उस टाइम पे आपको एक प्रोफेसर या कोई साथ में गाइड करने के लिए खड़े होते हैं। बट जब यहाँ पर आकर मैंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट सर्जरी अपनी की, तो इट वाज बटरफ्लाईज फीलिंग जैसे बोलते हैं, वो आ रही थी। नर्वसनेस था बट एक कॉन्फिडेंस भी था, बिकॉज पिछले 4-5 साल से ट्रेनिंग की होती है। बट सी वही है, पहली सर्जरी हमेशा आपको नर्वस करती है, बट ऐसे ही बताया जाता है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज को करते जाएंगे तो अपने आप सारा कुछ ठीक होता है। Okay, a follow-up question to that. So what's the difference between your first surgery and now? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट सर्जरी की बात करें तो वही बटरफ्लाईज फीलिंग थी, और अगर अब की बात करें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द सर्जरीज में ब्रेन लेवल पे जाना ही नहीं पड़ता, स्पाइनल लेवल पे, बिकॉज हम भी और हमारे असिस्टेंट भी सब इस तरह से ट्रेंड है कि बिना बोले सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप अपने आप चलता जाता है। हर एक को अपने रोल्स पता है, हमें भी पता है। जैसे ही सर्जरी शुरू होता है तो मेरा एक ओटी में बड़ा एक शांत सा माहौल रहता है, बहुत कम लोग बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन है, हाथ इधर करें तो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आपके हाथ में मिल जाता है। तो आई थिंक इट इज मोर वेरी स्मूथ वर्क फ्लो नाउ, कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई किसी को गाली नहीं पड़ रहा है, तो बड़ा एक पीसफुल सा एटमॉस्फेयर है, तो बड़ी शांति से बड़ा स्मूथली काम चलता है। Okay, so one thing your family complains about? मेरे बच्चे जरूर कंप्लेन करते हैं कि डैड बहुत लेट घर आते हैं, तो आई ट्राई कि आई स्टार्ट अ लिटिल अर्ली जब वो सो रहे हैं, एंड जब तक वो शाम को अपना पढ़ाई से ट्यूशन से फ्री हो जाते हैं। तो लास्ट 6 मंथ से अभी यही हमने चेंज किया है कि आई ट्राई टू रीच होम बाय 6:37 जब तक उनका सारा पढ़ाई होता है। तो इवनिंग जो 7 से 10 का टाइम है वो आई नाउ ट्राई टू स्पेंड विद माय फैमिली, ताकि ऐसे ना हो कि जैसे छोटे होते मूवीज देखते थे कि बच्चा भागते भागते बड़ा हो के अमिताभ बच्चन बन गया, तो वो नहीं चाहता हूँ कि उनकी जो बचपन है वो आई वांट टू सी माय किड्स ग्रोइंग, एंड उनकी सारे उनके अच्छे बुरे जो भी सारे टाइम्स हैं उनके साथ में आई वांट टू स्पेंड। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मैनेज वर्क एंड फैमिली टुगेदर। तो अभी ये कांस्टेंट एंडेवर है कि टाइमली घर पे जाएं ताकि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। So how do you handle stress? Do you do yoga, long walks, or just like sleep? आई थिंक इस चीज में मैं जरूर कहूंगा कि एक गॉड्स गिफ्ट है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा मेरे अंदर आता नहीं है। तो देखो हर तरह की पर्सनालिटीज है, कई लोग बिना चीज की भी स्ट्रेस ले लेते हैं, तो मेरा थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड ही पर्सनालिटी ऐसे है कि बहुत बड़े स्ट्रेस को समहाउ एक लाइटली हैंडल करता हूँ। इसको हम दूसरी तरह से कहें तो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। तो मेरे को लगता है कि हाँ, जो अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो स्ट्रेस देखो ऐसे नहीं मैं कहूँगा कभी स्ट्रेस नहीं आता है, स्ट्रेस आ जाता है, बट स्टिल एक बिलीफ होना चाहिए। वंस यू बिलीव इन गॉड कि हाँ जो भी वो कर रहा है उसका प्लान है और सब कुछ अच्छा ही होगा, एंड रिजल्ट हर एक चीज का अच्छा ही होना है, बिकॉज दैट इज हाउ गॉड प्लान्स थिंग्स। तो अगर एक मास्टर प्लानर के ऊपर आपको विश्वास है तो धीरे 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 आप उस विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करते हो, बिकॉज टाइमली हम देखते हैं कई चीजें हमें उस टाइम पे लगती हैं कि ठीक नहीं हो रही हैं, बट लॉन्ग रन में अगर देखते हैं तो वो आपके लिए ठीक हो रही है। तो वो ये एक विश्वास बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस के लिए मोस्टली आई काइंड ऑफ लिसन टू म्यूजिक, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो जब ग्राउंड पे जाते हैं तो टोटली डिफरेंट इमोशंस आते हैं, सारा वर्क स्ट्रेस भूल के हम खेलने लग जाते हैं। तो अदरवाइज वही है, अ गुड नाइट स्लीप। आई ट्राई टू स्लीप 7 to 8 hours ताकि सारी बॉडी फ्रेश भी हो जाती है और सारा स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। So, are you a morning person or a midnight thinker? जब से कॉलेजेस के टाइम ले लें या फिर प्रिपरेशन प्री मेडिकल डेज ले लें, तो आई वाज ऑलवेज अ नाइट पर्सन। मेरे को पसंद था कि रात को जब सब सो गए हैं 11 बजे के बाद सब शांति हो गया आराम से पढ़ने का, तो 11 से लेके सुबह 5 बजे तक आई यूज्ड टू स्टडी एंड देन स्लीप। बट ऑफ द लास्ट 3 years अगर मैं देखूं तो आई लाइक के मॉर्निंग से जल्दी उठा जाए। तो आई गेट अप अराउंड 6 o'clock, तो सुबह 7 o'clock हमारा पहले सर्जरी शुरू कर लेते हैं। तो बिफोर माई आउट पेशेंट स्टार्ट्स अराउंड 10 o'clock, तो हमारा कोशिश होता है सुबह 5 से 6 सर्जरीज हम सुबह ही कर लें, ताकि दिन में जब हमें आउट पेशेंट में सारे पेशेंट्स देखते हैं तो रिलैक्स्ड है। तो ऑफ लेट इन द लास्ट 3 years अभी ऑटोमेटिकली आई बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। Okay. So one thing your colleagues always tease you about.
सारे लोग मुझे आजकल रोबोडॉग या रोबोट के नाम से ही चिढ़ाते हैं, बिकॉज सिंस 2023 जब से रोबोट आया तो आई हैव बीन ईटिंग ड्रिंकिंग एवरीथिंग, हम सारा रोबोट के साथ ही हो रहा है। तो कभी कभी वही छेड़ते हैं कि तूने तो रोबोट से ही शादी कर ली है, तू हमारे साथ क्रिकेट कम खेलता है, यू डोंट स्पेंड टाइम विद अस। तो आई थिंक यही कंप्लेंट है, बट वही है, अभी प्लानिंग इसी तरह से चल रही है कि सारा कुछ कंपार्टमेंटाइज किया जाए, प्लान किया जाए, ताकि नथिंग हैज टू सफर। फ्रेंड्स को भी टाइम देना जरूरी है, तो सब कुछ इसी तरह से आगे प्लान हो रहा है कि सारा कुछ बैलेंस करके चलाएं। Okay, so what's your guilty pleasure after a long surgery day? देखो, जब हम काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, तो उस टाइम पे तो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। तो वंस फिनिश माय वर्क 7-8 बजे जब हम घर जाता हूँ, तो उस टाइम पे ऐसे होता है कि सब खाने पीने के सब कंट्रोल्स खत्म हो जाते हैं। कभी सोचते हैं डाइट करना है, कुछ करना है, बट जब शाम को 7-8 बजते हैं तो जो भी सामने स्नैक्स आते हैं या कुछ चॉकलेट्स आती हैं, तो उस टाइम पे आई कैन नॉट कंट्रोल। तो माय गिल्टी प्लेजर इज ईटिंग एंड आई थिंक चॉकलेट्स मे बी। Okay, so if your patients can describe you in 3 words, what would that be? I think my patients, if they describe me in 3 words, they would say perfectionist, empathetic, and hardworking, because they see me working from morning till evening, and when I'm in the OT, I would not settle for anything less than perfection. पोस्ट ऑप में भी पेशेंट्स के लिए केयर में अगर स्टाफ भी या किसी की तरह में कहीं कोई कमी आ रही है तो दैट इज नॉट टॉलरेटेड। तो इसीलिए एक एटमॉस्फेयर इस तरह से बन गया है कि पेशेंट्स भी और सारे जो स्टाफ हैं वो सारे इस तरह से अलाइंड हैं कि सब कुछ एक फैमिली एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए, और सबकी जो एक छोटी से छोटी डिमांड है, कोई भी होती है पेशेंट की या स्टाफ की भी होती है, तो सारे को पूरा किया जाता है। तो काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें जो उसके अराउंड है उनको हम साथ के साथ सेटल करने की कोशिश करें। Okay, so how do you spend your Sundays? जैसे कि आप अकेले रहना चाहते हो, फैमिली के साथ, या क्लिनिक में रहना चाहते हो? संडेज पोस्ट कोविड आई डोंट वर्क, तो इट इज जस्ट कि अगर पेशेंट्स एडमिटेड है उनको एक राउंड किया जाता है जस्ट टू सी कि हाँ एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। अदरवाइज संडेज आर फैमिली टाइम, रेस्टिंग टाइम, पूरा रेस्ट किया जाता है, तो थोड़ा बहुत टीवी देखा जाता है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जिम किया जाता है, एंड इट इज जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली विदाउट एनी प्लान्स। तो वो पूरा अनप्लान्ड रहता है, संडे पूरा रेस्ट करते हैं, उस टाइम पे हम पूरा अपना रिजुविनेट करते हैं, बिकॉज आगे 6 दिन हमें फिर स्ट्रेस आउट करके पूरा काम। One thing you have learned about life from your patients? Well, my patients have been my biggest teachers. तो पेशेंट से मैंने यही सीखा है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्जरी या फिर उनके घुटनों या जो भी हम चीज़ करें, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट सर्जरी। तो एक पेशेंट से उनकी पूरी फैमिली या उनकी पूरी लाइफ इफेक्ट होती है। तो जब हम उस तरह से सोचते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट डूइंग अ सर्जरी, तो उसके अराउंड जो सारा सिस्टम चल रहा है ना, तो उसके बारे में अभी समझ आना शुरू हुआ है कि हर एक पेशेंट को एक जब भी सर्जरी के लिए आता है तो इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। तो द थॉट बिहाइंड जो प्रॉब्लम्स उसके थ्रू जा रही हैं, तो अभी धीरे धीरे टाइम के साथ हम उस थॉट को समझने लगे कि अगर कोई पेशेंट किसी दिक्कत में आ रहा है तो इट इज नॉट जस्ट पेन, उसको और चीज कोई जैसे चलने के टाइम उसको मुश्किल आ रहा है, कुछ एम्बैरेसमेंट हो रहा है, वो पब्लिकली जा नहीं पा रहा है, तो अभी वो सारी फीलिंग्स को भी हम साथ में फील करते हैं। तो जब ये सारा कुछ अब हम फील करने लगे हैं तो उसके साथ हमारे को पता लगा है कि इट इज इवन मोर, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है कि हमें और अच्छी तरह से काम करना है, बिकॉज सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं हम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू चेंज लाइफ्स। और एक बंदे के साथ एक लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही है, उसके साथ पूरे जो उसकी फैमिली है, तो 10 बंदों की जिंदगी उसके साथ कनेक्टेड है। तो इससे हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हम ट्रीटमेंट तो अच्छा करें ही करें, तो उसके अराउंड जो उसका एक एटमॉस्फेयर है उसको कंफर्ट कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम एक टोटलिटी में अब और अच्छे से देखने लगे। Okay. So what's hard? I'll give you 2 options: saying no to a last minute surgery or like cancelling your family dinner plans. देखो, दोनों ही बहुत हार्ड है। देखो, नॉर्मली हम जब कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट जो हम करते हैं, दैट इज एन इलेक्टिव सर्जरी, बट कभी कभी पेशेंट्स बहुत दूर से आ रहे हैं, तो दे हैव बीन ट्रैवलिंग 200-300 किलोमीटर, और वो आ जाते हैं और कहते हैं सर हम तो आज करवाने ही आए हैं, एंड यू ऑलरेडी हैव 6 to 8 सर्जरीज और आपके पास टाइम खत्म है, बट उनको मना करना इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरे घर वाले यही हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आप सर कभी ना क्यों नहीं कर पाते हो, कि जब आपके पास पहली प्लान है कि आपका ऑलरेडी 10 बज रहे हैं तो आप और कैसे हाँ कर देते हो। तो फॉर मी इट इज इम्पॉसिबल, मैं किसी पेशेंट को ना नहीं बोल पाता हूँ, ये मेरी एक कमी जरूर है, बट आई समहाउ ट्राई टू एडजस्ट कैसे हम दूसरा ओटी साथ रख के किस तरह से प्लान करके उसको
अकोमोडेट कर दें, बट अकोमोडेट हम जरूर करते हैं. तो आई कांट से नो टू अ पेशेंट. मे बी कुछ घंटे लेट हो जाता है, मे बी नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, बट हम उनको एडजस्ट जरूर करते हैं. और फैमिली डिनर को ना करना तो फिर मरने वाली बात हो जाती है. वो तो आप कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अकोमोडेट करना ही करना है. तो दोनों चीजें ही मेरे लिए इम्पॉसिबल है. तो आई जस्ट overwork myself and adjust to both the things. Okay. So, if you could switch lives to any doctor, who would that be and why? I don't think I would like to change or switch to any other life, क्योंकि जो मेरा एक कोर्स रहा है, जो एक ग्रोथ रही है, जो मेरा एक लर्निंग कर्व रहा है, या जो अभी मैं कर रहा हूँ, आई थिंक आई लव व्हाट आई डू. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कुछ ऐसा कर सकता है बिना उस चीज को प्यार किए या बिना उसको एंजॉय किए. तो आई रियली एंजॉय माई वर्क. जब पेशेंट्स आते हैं हील करके, जब वो चल नहीं पा रहे होते हैं, अच्छे से चल पाते हैं, जब आके बताते हैं कि अब हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, तो जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो खुशी मिलती है, तो आई डोंट थिंक कि मैं किसी के साथ भी कोई चेंज करना चाहूंगा. तो आई थिंक आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ ऑलरेडी. That's nice. So the final question, what's your biggest strength in life? I think the biggest strength in my life is my family, because ups and downs सबकी लाइफ में आते हैं. तो ऐसी टाइम्स पे फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिला है, हमेशा मिलता रहेगा, आई होप. एंड द सेकंड स्ट्रेंथ इज द बिलीफ इन गॉड. ठीक है, तो वही है, टाइम्स जब टफ हो जाते हैं, उसी टाइम पे आपका जो भगवान में विश्वास है वो होना चाहिए. तो इट इज लाइक यू आर वर्किंग ऑन अ प्लान, बट वो आपका प्लान नहीं है, वो मास्टर प्लानर का प्लान. ठीक है, तो उस पे चलते जाना है, विश्वास दिखाते जाना है. एंड आई थिंक अगर आप अपना हार्ड वर्क करते जाओगे, तो इनिशियली इन माई लाइफ आई वॉज अ वेरी लेड बैक पर्सन. बहुत रिलैक्स था, जब जरूरत होती थी तभी उठ के काम करते थे. तो आई थिंक दैट ट्रांजिशन फ्रॉम अ लेड बैक लेजी गाय टू अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज काइंड ऑफ द जर्नी ऑफ माई लाइफ. एंड आई थिंक विद गॉड्स ग्रेस, फैमिली सपोर्ट एंड हार्ड वर्क, आई थिंक सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है. Okay. So that's the end of the rapid fire round. Thank you so much, sir. थैंक यू. जैसे कि आपने देखा, एक रोबोट डॉक्टर एक रोबोट नहीं है. आज हमने उनका एक इमोशनल साइड भी देखा. सो आई होप कि इस वजह से जो भी पेशेंट्स आने वाले हैं उनको और कंफर्टेबल फील होगा इनके साथ और इनके हॉस्पिटल में, बिकॉज ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, ये एक जिंदगी भर का रिश्ता बन जाता है.